یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کے 7 اطوار و طریقے بنائے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دل کی 7 کیفیت، 7 حالات، 7 اس کے عادات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عالم ناسوت کیا ہے؟ روحانیت کی دنیا میں، تصوف کے ماحول کے اندر، صوفیہ کی مجلس و مجالس میں اکثر آپ لوگ عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت اس طرح کے الفاظ سنتے ہوں گے۔ تو اس کے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنایا تمام عالم کے بارے میں، تو اب عالم ناسوت جس دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں عالم ناسوت۔ عالم ناسوت سے ملکوت تک وہ عالم ہے جو ظاہر ہے، عالم ناسوت سے ملکوت تک وہ عالم ہے جو ظاہر ہے۔ یہی شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو ظاہر میں ہے۔ شریعت کے نیک اعمال کر کے ناسوت سے ملکوت تک، قالب سے قلب تک پہنچتے ہیں، یعنی شریعت پر پابندی کر کے، شرعی امور پر عمل کر کے، جس کو شریعت نے حلال کہا اس پہ عمل کر کے، جس سے شریعت نے منع کیا اس سے دور ہو کر کے ہی بندہ شریعت پر عمل کر کے طریقت تک پہنچتا ہے، یعنی عالم ناسوت سے عالم ملکوت تک پہنچتا ہے۔ قالب کو قلب کا رنگ حاصل کرنے کے لیے شریعت پر پابند ہونا ضروری ہے، یعنی شریعت کی پابندگی، شریعت کی پاکیزگی سے ہی طریقت کا نور ظاہر ہوتا ہے، یعنی جو شریعت میں پاکی اختیار نہ کرے وہ طریقت کی روشنی سے دور رہے گا۔ یعنی آپ ظاہری پاکیزگی کا اختیار کرو، آپ ظاہری پاکیزگی کا اہتمام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے باطن کو پاک فرما دے گا۔ یعنی طریقت کے لیے ظاہر و باطن دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ظاہر میں کپڑا بدن تمام طرح کی غلاظت سے پاک ہو، جیسے ظاہر میں ظاہری آلودگی سے بچنا ہے، ظاہری نجاست سے بچنا ہے، ویسے ہی باطن میں دل کو تمام طرح کی خرابیوں سے، تمام طرح کے برے اوصاف سے، تمام طرح کی خرابیوں سے پاک و صاف رکھنا ہے۔ یعنی دل کی پاکیزگی کا ہی نام ناسوتی پاکیزگی ہے، یعنی جس شخص کا دل شریعت نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے اس سے رک جائے، اسی کا نام ناسوتی پاکیزگی ہے۔ اب تمام طرح کی برائیاں ہمارے دل کے اندر ہی آتی ہیں اور دل ہی کے فیصلے پر بندہ پورا عمل کرتا ہے۔ اسی لیے عالم ناسوت کی منزلیں طے کرنے کے لیے دل کا پاک ہونا اور دل کے اندر اچھے اوصاف کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اب صوفیہ نے دل کے 7 اطوار و طریقے مخصوص کیے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کے 7 اطوار و طریقے بنائے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دل کی 7 کیفیت، 7 حالات، 7 اس کے عادات ہیں، 7 اس کی منزلیں یوں کہہ لیجئے ہیں، ہے سب دل کے اندر ہی 7 طرح کے اس کے اوصاف، جس کو اطوار کہتے ہیں، یعنی اس کے طور طریقے۔ پہلا ہے صدر یعنی سینہ، دوسرا ہے قلب یعنی دل، تیسرا ہے شفاف، چوتھا ہے فواد، پانچواں ہے جنت القلب، چھٹواں ہے سویدا، ساتواں ہے بہجت القلب۔ یعنی یہ 7 اوصاف ہمارے جو ہے نا وہ قلب کے اندر موجود ہیں۔ اب اس کی باریکیوں کو آپ سمجھیں۔ صدر نام جس کو کہتے ہیں، یعنی صدر یعنی سینہ، یہ اسلام ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسلام ہے۔ یعنی اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کے طرف سے نور پر لگ گیا، روشنی کی طرف آ گیا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ رب کے طرف سے نور کی طرف آ گیا۔ یہی طور دل کا پوشت اور غلاف ہے یا شیطانی وسوسوں کا مقام ہے، یعنی نفس کے تمام طرح کی خرابیوں کا بھی مقام یہی ہے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یبسبسوا فی صدور الناس من الجنۃ والناس،
यानी शैतान खन्नास लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, मगर कुछ जिन और कुछ इंस, है ना। यानी हमारे दिल के अंदर जो शैतान वसवसा पैदा करता है, ये उसी मकाम पर, ये दिल का वही मकाम है, वही कैफियत है ना। कहते हैं कि इसके दिल में वसवसा पैदा कर गया। और अगर गुनाहों की नहुसत और कहरे इलाही के असर से अगर नूरे इलाही नूरे इस्लाम में कमी आ जाए तो कुफ्र की तारीकी व जुल्मत बढ़ जाए। चुनांचे खुदा जिसका दिल कुफ्र पर खोल दे तो यही मकाम तमाम बुराइयों का सर चश्मा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह चाहे तो जिसका दिल इस्लाम के लिए खोल दे या जिसका दिल कुफ्र के लिए खोल दे। इस्लाम के लिए जिसका दिल खोल दिया गया वो नूर और रोशनी की तरफ आ गया, और जिसका दिल जो है कुफ्र के लिए खोल दिया गया वो जुल्मत व अंधेरे में आ गया। यानी नासूती आलम नासूत के जुल्मत में वो शख्स डूब गया। बात समझ आई। दूसरे है कल्ब, दूसरे तौर का नाम कल्ब है, यानी दिल है जो ईमान का ख़जाना है। यानी जिसको असल कल्ब कहते हैं वो ईमान का ख़जाना है और हक व सच्चाई का सरचश्मा है। अल्लाह तबारक व तआला इसी के ताल्लुक़ से फरमाता है, यानी यही वह लोग हैं जिनके दिलों में नूर ईमान लिख दिया गया है। यानी नूर अक्ल का घर है, नूर जो है अक्ल का घर है। दूसरे मकाम पे फरमान है, उनके दिल ऐसे हैं जिनसे वो अक्ल वो समझ हासिल करते हैं। उनके दिल ऐसे हैं जिससे वो अक्ल और समझ हासिल करते हैं। यानी दिल की बीनाई जिसको बसीरत कहते हैं, यानी निगाह बसीरत यानी दिल की नज़र। तीसरे है शफाफ, तीसरे तौर का नाम शफाफ है जिसकी वजह से मोहब्बत का तुखम जो पाक मोहब्बतें होती हैं, जैसे आले नबी से मोहब्बत, औलिया और अंबिया से मोहब्बत व इरादत का यही मकाम है। यानी तमाम तरह के अल्लाह के मुकर्रबीन की जो मोहब्बत आती है, इसी वजह से शफाफ जिसको कहते हैं कल्ब की वो कैफियत है, इसी कैफियत में होती है। अंबिया औलिया मशाइखीन इज़ाम की मोहब्बत, मुरीदों और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इसी तौर से होती है। यानी जिसके अंदर ये कैफियत ये तौर नहीं मौजूद है, वो शख्स ना तो किसी वली से मोहब्बत करेगा, ना किसी नबी से उसके दिल में मोहब्बत होगी, ना आले नबी से। ख़ास तौर पे अहले बैत अतहार और अल्लाह के मुकर्रबीन की मोहब्बत उसके दिलों में नहीं होगी, बल्कि निफाक की शक्ल में वो दाखिल होगी। तो ये तीसरा तौर जो है शफाक है, शफाफ। चौथा है फवाद, चौथे तौर का नाम फवाद है जिसे तहे दिल भी कहते हैं। ये जलालो जमाल और दूसरी सिफात और मुशाहिदात देखने का मकाम है। यानी कहते हैं कि जो कुछ उसने देखा उसे तहे दिल ने नहीं झुटलाया। कहते हैं ना कि हमने इस बात को तहे दिल से मान लिया, यानी दिल की गहराइयों से, दिल की सच्चाई। तो ये कैफियत ये है। पांचवा है जन्नतुल क़ल्ब, पांचवा तौर का नाम है जन्नतुल क़ल्ब, जो खुदा के ज़ौक़ व शौक़ और उसके इश्क का मकाम है। इस जगह पर किसी दूसरे की दोस्ती की को दखल नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए ही है। यानी कल्ब की ये कैफियत जो है, कल्ब का ये गोशा जो है, सिर्फ उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इश्क व मोहब्बत, उसके मुकर्रबीन से मोहब्बत ही की गुंजाइश है, बाकी किसी से मोहब्बत की गुंजाइश नहीं है। छठवा है सोएदा, छठे तौर का नाम है सोएदा, इसे सोएदा कहते हैं। ये मकाम जो है, दिल का ये गोशा जो है, ये गैबी मुकाशफात, इल्म लुदन्नी, हुरूफ मुअक्कतात, अस्माए हुस्ना की मारिफत व असरार इलाही का ख़जाना है। जैसा कि फरमाने इलाही है, यानी हमने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। यानी ये तौर जो है अल्लाह तबारक व तआला ये खासाने खुदा जो है, उसके मुकर्रबीन जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, उसके अकरबा मुकर्रबीन होते हैं, उनके दिल की ये कैफियत ज़्यादातर होती है। सातवां है बहजतुल क़ल्ब, सातवें तौर का नाम है बहजतुल क़ल्ब है। इस जगह ज़ाती सिफ़ात का ज़ुहूर और उलूहियत की तजल्लियात होते हैं। नफ्स व शैतान
کو बजुज़ तौर पर सदर के और अतवार के में पहुँचने का मजाल नहीं, यानी ये वो मकाम है नफ्स और शैतान को बजुज़ तौर सदर के और अतवार में पहुँचने का मजाल नहीं, जैसे कि फरमान इलाही यानी नफ्स शैतान का गुज़र नहीं होता है, यानी हर शैतान शरकस से आसान है, वो मलाए आला की कोई बात बतकलीफ भी नहीं सुन सकते। यानी इस मकाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स और शैतान से पनाह में अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। यानी ये सारी कैफियत जो हमने बताए ये आलम नासूत की कैफियत है, यानी हमारे दिल की जो कैफियत है। कहते हैं कि दिल के मंजिल से उरूज करके जब बंदा अपने कल्ब की रोशनी रियाज़ात के ज़रिए जब कल्ब उसका रोशन होता है तो उसके अंदर जो काम की चीज़ें हैं वो जो तजल्लियात हो, यानी जो हमने जो 7 मकामात उसके बताए उसमें कुछ जुल्मत के हैं और कुछ रहमत के हैं। तो जुल्मत वाली चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और रहमत वाली चीज़ें उसमें बढ़ जाती हैं। तो जुल्मत को ख़त्म करके अल्लाह के रहमत और नूर की तरफ बढ़ने का नाम है आलम नासूत से आलम मलकूत के लिए परवास करना। यानी ना आलम नासूत हमारे वजूद के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हर तरह की नासूती आलूदगी से हम सब के क़ुलूब और वजूद को पाक फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।